أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. آج کا موضوع خطابت پچھلے جمعے والا موضوع إياك نعبد وإياك نستعين اسی سے متعلق ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں امام ہدا، سرور کون و مکان اور رہبر انسانیت بنا کر بھیجے گئے۔ آپ نے دنیا والوں کو اللہ کے دین کے اپنانے، رب کی شریعت پر عمل کرنے، اللہ تعالیٰ کی توحید کے ماننے، اللہ کی الوہیت اور یکتائی پر ایمان رکھنے اور اپنی رسالت و نبوت کو تسلیم کرنے کا حکم دیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ میں نے اپنی ذات پر یہ عہد کر رکھا ہے کہ ہر گناہ گار کو معاف کر دوں گا، لیکن مشرک کے شرک کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کریم مثالوں سے ماورا ہے۔ باپ بیٹے کا ہر گناہ، خواہ بیٹا بڑے سے بڑا جرم کر لے، اسے معاف کر دیتا ہے، لیکن اگر یہ کہے کہ میرے باپ کے نطفے میں خلل ہے، یہ میرا باپ ہی نہیں ہے، تو پھر یا میری ولادت میں میرے باپ کے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ باپ کہے گا کہ اس بیٹے کو دیکھنے سے مر جانا بہتر ہے۔ یا بیٹا اپنی ماں سے کہتا ہے کہ میں اس باپ سے نہیں ہوں جس کا تو نام لیتی ہے، بلکہ میرے باپ کے ساتھ تو نے کسی اور کو بھی شریک کیا ہوا ہے۔ ماں جو محبت کا مرکز ہے، بیٹے کے ہر گناہ کو معاف کر دے گی، لیکن اپنی عصمت پر شراکت کی تہمت کو کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ الزانیۃ لا ینکحها الا زان او مشرک۔ قرآن کریم نے خود یہ مثال دی ہے کہ اگر تم اپنے باپ کے ساتھ کسی کو شریک گوارا نہیں کرتے تو خالق کائنات کے ساتھ کیسے شریک بنا لیتے؟ کوئی حلال زادہ اپنے باپ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتا، اور کوئی حلال زادہ رب کے ساتھ بھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتا۔ اسی لیے رب تعالیٰ نے 18ویں پارے میں فرمایا ہے کہ بدکار عورت سے کوئی مومن شادی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس نے اپنی عزت میں دوسرے کو شریک کیا ہے۔ اللہ پھر اس کے ساتھ کون شادی کرے گا؟ فرمایا نہ موحد کرے گا نہ مومن کرے گا۔ اس سے اگر شادی کرے گا تو کوئی زانی اور بدکار ہی کرے گا، یا وہ کرے گا جس نے رب کے ساتھ کسی کو شریک کیا ہو۔ والزانیۃ لا ینکحها الا زان او مشرک۔ بدکار سے شادی نہ موحد کرے گا نہ غیرت مند کرے گا۔ اللہ کون کرے گا؟ فرمایا جو رب کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا ہے وہ کرے گا، یا جو عورتوں کے ساتھ شریک بننے والا ہے وہ کرے گا۔ جس کی رگوں میں خالص خون ہے وہ بدکار عورت سے شادی نہیں کر سکتا، اور نہ ہی رب کی توحید کا ماننے والا اس سے شادی کر سکتا ہے۔ شرک اور بدکاری دونوں اس لحاظ سے برابر ہیں کہ قرآن کریم نے بتلایا ہے کہ جس طرح تم ماں باپ سے شرکت گوارا نہیں کرتے، کائنات کے خالق میں کیسے شرکت گوارا کرتے ہیں۔ شرک اس کا نام ہے کہ آدمی کے دل میں لمحے بھر کے لیے خیال آئے کہ اللہ بھی یہ کر سکتا ہے اور کوئی اور بھی کر سکتا ہے۔ یہ اللہ بھی کا تصور ہی شرک ہے۔ کیا تصور ہونا چاہیے؟ تصور یہ ہو جیسے کہ ابھی موضوع کے شروع میں بتایا تھا کہ آج کا موضوع ہے، خطابت کے شروع میں بتایا تھا کہ آج کا موضوع ایاک نعبد و ایاک نستعین،
कि हम तेरी ही मदद चाहते, तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं। यानी इबादत भी सिर्फ तेरी और मदद भी सिर्फ तेरी ही, ना मदद तेरे अलावा किसी से और ना इबादत तेरे अलावा किसी और की जा सकती है। अल्लाह ही रब के सिवा और कोई मदद नहीं कर सकता। वो किसी फौतशुदा के वास्ते वसीले का भी मोहताज नहीं। वो इन सब कमज़ोरियों से पाक है, बेनियाज है। हमने रब की तौहीद को किस तरह छोड़ा, पहले रब के कुरान को छोड़ा। 20वें पारे का आगाज़ में अल्लाह ताला फरमाता है, अम्मन खलक़स समावाति वल अर्ज़ व अंज़ल लकुम मिनस समाइ माअन फअंबतना बिही हदाइक़ ज़ाता बहजा। कुरान पूछता है, अइलाहुम मअल्लाह, क्या रब के सिवा भी कोई ऐसा काम कर सकता है कि तुम बीज उठाते हो और उसे मिट्टी के अंदर छुपा देते हो। कुरान पूछता है, मा कान लकुम अन तुंबितू शजरहा, फिर कौन है जो मिट्टी हुए बीज को दरख्त की सूरत में नमदार फरमा देता है। कायनात प्यासी, कुएं वीरान, दरिया खुश, नहरें खाली। अंज़ल लकुम मिनस समाइ माअ, कौन है जो बरखा बरसा कर सारी कायनात को ज़िंदगी बख्श देता है। अम्मन जअल अर्ज़ क़रारन व जअल खिलालहा अनहारा, कौन है जिसने ज़मीन को एक जगह ठहराया कि अपनी जगह से खिसकती नहीं। लम्हे भर के लिए ज़लज़ला आता है तो घरों को छोड़कर भाग जाते हो। कौन है जिसने पहाड़ों की सूरत में ज़मीन में कील गाड़ रखे। वजअल खिलालहा अनहारा, कौन है जिसने ज़मीन के सीनों को चीर कर उसमें दरिया बहा रखे हैं। वजअल लहा रवासिया वजअल बैनल बहरैनि हाजिज़ा, कौन है कि समुंदरों के एक पानी के दरमियान दीवारें खड़ी कर रखी हैं, एक तरफ का पानी खारा और एक तरफ का पानी मीठा। कौन है। सारी बातें समझा कर फिर रब क्या कहता है, फरमाता है कि ये सारे काम तो रब करे और जब तुम्हें मुसीबत पहुंच जाए तो फिर किसी और के पास चले जाते हो। अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस्सूअ व यजअलुकुम खुलफ़ाअल अर्ज़, वो कौन है जो बेकरारों को करार बख्शता है। वो कौन है जो फरियाद करने वालों की फरियाद को पहुंचता है। अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआ, कौन है कि जिसको मुसीबत के वक्त पुकारा जाए। ये नहीं है कभी उसके घर से, कभी उसके घर से, कभी उसके दर से, कभी उसके दर से। मोमिन वो है जो रब के दरवाजे को छोड़ना कभी गवारा नहीं करता। बड़ों बड़ों पे मुसीबतें आई हैं, कदमों में डगमगाहट आई, लोगों ने बहकाना चाहा कि यहाँ से क्या मिलेगा, किसी और खानका पे चलो। उन्होंने क्या कहा, रब के दरवाजे पे मर जाना गवारा, किसी गैर के दरवाजे से खैर लेनी गवारा नहीं है। तौहीद इसी का नाम है। झुकाओ तो सर उसके आगे झुकाओ और झोली फैलाओ तो उसके आगे, हाथ फैलाओ तो उसके आगे, गर्दन झुकाओ तो उसके आगे। मालिक समझो तो अर्श वाले को, राज़िक़ समझो तो अर्श वाले को, खालिक समझो तो अर्श वाले को, नफ़ा और नुकसान देने वाला समझो तो अर्श वाले को, इज़्ज़तों पे सरफराज करने वाला समझो तो अर्श वाले को समझो, ज़िल्लतों से बचाने वाला समझो तो अर्श वाले को समझो कि अर्श वाले के सिवा सारी दुनिया मिलकर भी कुछ नहीं कर सकती। तौहीद इसी का नाम है। इकबाल ने कहा था, तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे, ये बंदा तो आलम से खफा मेरे लिए है। इसीलिए कुर्बानी देना पड़ती है, लोगों का मजाक सहना पड़ता है। तो कह दो, अगर इलाह मनवाना है तो अर्श वाले के सिवा किसी को मानने के लिए तैयार नहीं है। क्या मनवाना चाहते हो, बंदों के मुतालिक कहते हो कि हम उन्हें खुदा बना लें। ये कोई मोमिन नहीं कर सकता, किसी और से सवाल करो। याद रखो, अगर चाहो कि तुम्हारी इबादतें रंग लाएं तो उसके लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है। पहली चीज़ ये है कि रब की तौहीद में खलल नहीं आने देना, क्योंकि रब ताला ने कुरान हकीम में फरमाया, अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुज़्ज़ु अला तआमिल मिस्कीन फ़वैलुल लिलमुसल्लीन। बाद नमाज पढ़ने वालों के लिए भी जहन्नम है। अल्लाह कैसे नमाज भी पढ़ें और जहन्नम भी। फरमाया, वो मेरे सामने भी झुकते हैं और गैर के सामने भी झुकते हैं, इसीलिए उनकी नमाजों का कोई फ़ायदा नहीं। वजअलू लिल्लाहि मिम्मा ज़रअ मिनल हर्सी वल अनआमि नसीबा, वो लोग जो मवेशी और पैसे की अल्लाह के लिए ज़कात निकालते हैं और कहते हैं थोड़ा सा किसी और के लिए निकालो। 29 दिन सब कुछ अल्लाह के लिए और 11वें दिन का गैरुल्लाह के लिए। फमा कान लिशुरकाइहिम फला यसिलु इलल्लाहि वमा कान लिल्लाहि फहुव यसिलु इला शुरकाइहिम। सुन लो, गैरुल्लाह के नाम का दिया हुआ भी रब को नहीं पहुँचता और अल्लाह के नाम का दिया हुआ भी रब को नहीं पहुँचता।
ज़कात भी गई। फिर क्या फरमाया, अजअलतुम सिक़ायत अल-हाज व इमामत अल-मस्जिद अल-हराम कमन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व जाहद फी सबीलिल्लाहि ला यस्तऊना इंदल्लाह वल्लाहु ला यहदिल कौम ज़ालिमीन। काबे का तवाफ भी करो, काबे की चौखट को भी चूमो, काबे को आबाद भी करो, हाजियों की खिदमत भी करो, खिदमत हिज्जाज की अंजुमनें भी बना लो, सब करो, लेकिन रब के साथ किसी और को शरीक पे ठहराओ। फरमाया मावाहु जहन्नम, हज भी जहन्नम से नहीं बचा सका, काबे की तामीर भी जहन्नम से नहीं बचा सकती। अल्लाह तेरी कुदरत पे कुर्बान कि एक तरफ हाजियों को सिद्धू पिलाने वाला, बेवाओं को कपड़े पहनाने वाला, बैतुल्लाह की तामीर करने वाला, हर साल हज करने और करवाने वाला अबू जहल है, और दूसरी तरफ मक्का के घरों में बर्तन साफ करने वाली सैयदा सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा हैं। उसके पास तो पैसे ही नहीं कि तेरी राह में खैरात करे। ये करोड़पति हज़ारों को पहनाने वाला और पिलाने वाला। फरमाया अबू जहल दोज़ख की तह में और सुमैया अभी जिंदा है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को उसके बेटे और उसके खाविंद के सामने नंगा करके हाथ पांव बांध कर मक्का की सहरा में फेंका गया है, और ऊपर से कोड़े बरसाए जाते हैं और कहते हैं कि रब को भी मानो और हमारों को भी मानो। लेकिन वो कहती हैं कुल हुवल्लाहु अहद, मानना अर्श वाले को है, अर्श वाले के साथ किसी दूसरे को नहीं माना जा सकता। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो आए, एक तरफ काबे की खिदमत गुजार और एक तरफ गरीब औरत अबू जहल से फरमाया जहन्नम तेरी मुंतज़िर है, और सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया कि और उस दुनिया को छोड़ने से पहले फरमाया कि इस्बिरू या आली यासिर फ़इन्न मौइदुकुमुल जन्नह। सुमैया घबरा न जाना, नातिक वही हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अपनी आँखों से जन्नत में तेरे महल्लात को देख रहे हैं। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, जिसकी कही हुई उसकी कही हुई नहीं, अल्लाह की कही हुई है। वो कह रहा है सुमैया तो वो खुश नसीब हैं कि दुनिया में रहते हुए जिब्रील तेरे लिए जन्नत की बशारत लेकर आया है। लोगों, नमाज की कोई हैसियत नहीं, रोज़ों की कोई हैसियत नहीं, रातों की क़याम की कोई अहमियत नहीं, हज की कोई कदर व कीमत नहीं, सदक़ात व खैरात की कोई अहमियत नहीं, जब तक अक़ीदा तौहीद दुरुस्त ना हो। और अगर तौहीद का अक़ीदा दुरुस्त है तो फिर उसके साथ किसी और को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा इमाम नहीं मानना, यह दूसरी शर्त है। फिर इबादत भी काबिल कबूल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, मोमिन रोज़ा रखे हुए मर गया, कब्र में दफन किया गया, हिसाब किताब वाले फरिश्ते आए, अर्श वाले ने फरमाया पलट जाओ, जानते नहीं हो मैंने उसका नाम शहीदों की सफ़ में लिखा हुआ है। इस तरह का रोज़ा रखो, फिर रात को कुरान सुनो। छोटे मोटे गुनाह हो गए हैं, उन गुनाहों की वजह से आज़ाब आने लगा। कुरान आकर खड़ा हो गया। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुरान इस तरह बंदे के आगे खड़ा हो जाता है जिस तरह चील के आगे मुर्गी अपने बच्चों को बचाने के लिए खड़ी हो जाती है। अजाब आता है तो कुरान आकर कहता है हट जाओ, मैंने उसको अपनी पनाह में लिया हुआ है, और मेरे उतारने वाले यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वादा है जिसको मेरे कुरान ने पनाह दी है वो अजाब में मुब्तला नहीं हो सकता। अल्लाह ताला हमें अपनी तौहीद पे गैर मुतज़लज़ल ईमान रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और तौहीद किस बात का नाम है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इबादत भी सिर्फ तेरी और मदद भी सिर्फ तुझसे, ना मदद तेरे अलावा किसी और से, ना इबादत तेरे अलावा किसी और की। इसी का नाम तौहीद है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।